Hello friends, I am Vishnu Naupati. How are you? I hope that you are very fine and you are waiting for foundation classes of 11th standard. Friends, you have studied a chapter current electricity. In that chapter, you have studied or you came across with many devices for understanding the chapter current electricity. In the 11th syllabus, we have to study in detail, but for the detailed study, one must know different devices, its construction, shape, size, and its look, so that one can understand the problem very easily and he will secure good marks, or one can secure good marks in that chapter. So, are you ready to introduce different devices and to enter in the 11th syllabus? Yes, we will see, we will introduce different devices of current electricity chapter, and eventually we will enter in the new syllabus of 11th standard. So please be ready, and I hope that after watching this video you will be very pleased to study that current electricity chapter at higher level. So see now, this is a cell. In our circuit we call it as a battery. It has two terminals. One is positive, other is negative. We have connected two wires to those terminals to connect in circuit. This red wire is connected to positive terminal, while black wire is connected to or soldered to the negative terminal. Okay. Now we will discuss all the components or devices that we used in our circuit. जो सर्किट में सारी बातें हम यूजुअली यहाँ से आगे देखेंगे ना इस चैप्टर में, वो सारी बातें पहले समझ तो लेंगे क्या क्या होता है। दोस्तों, हम लोगों ने कई बार सुना होगा कि की इज प्रेस्ड, की इज कनेक्टेड. दिस इज व्हाट द की. दिस इज वन वे की, दैट ओनली वन की कैन बी प्रेस्ड. सी, this is what a hole or gap in which this key can be pressed. If it is pressed, then this gap is completed and therefore circuit is completed. Okay, so this is one way key. Now see, this is two way key. सर्किट में कभी दो की लगाना पड़ेंगे, मतलब दो लूप्स होंगे, दो सर्किट्स होंगे, तो ये ऐसी टू वे कीज यूज करना पड़ेंगे. वी हैव और वी कैन प्रेस्ड टू कीज इन द डिवाइस, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज टू वे कीज. टू वे की. दिस इज फोर वे की. 1 2 3 4. Four keys can be pressed here. See, 1 and 2. Opposite terminals. These opposite are empty. So we have four ways to press, and therefore it is called as a four-way key. Now here is a device that we use to measure the electric current. It is called as a milliammeter. See, there is MA. Milliammeter. Unit is milliampere, but device is milliammeter. It is used to measure the current. See, by this milliammeter, 500 milliampere current can be measured, up to 500. See, there is number 500, 0 to 500. So if 0 to 100, then you will see 10 divisions. अगर दो डिविजन्स आते हैं तो 20 मिली एम्पियर्स. एक डिवीजन आती है तो अगर डिफ्लेक्शन एक डिवीजन आता तो देयर विल बी 10 मिली एम्पियर करंट्स. एक डिवीजन का करंट 10 मिली एम्पियर्स.
तो ऐसे यहाँ पर 50 डिविजन्स है, इसलिए 500 मिली एम्पियर करंट कैन बी मेजर्ड बाय दिस डिवाइस। अगर करंट ज़्यादा है तो हमारे पास एमीटर होता, यहाँ पर खाली ए होता। देखो यहाँ पर एमए होता था, एमए मतलब मिली एमीटर, खाली ए है तो एमीटर। बाय दिस डिवाइस वी कैन मेजर 5 amperes current up to 5 amperes can be measured by this device. This device should be connected in series in the circuit. Do remember, हम लोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा कि सीरीज कैसा रहता, पैरेलल कैसा रहता। अब देखो ये है वोल्ट मीटर। By this we measure potential difference. So कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते, ये ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट बताती है कि यहाँ पर 3 वोल्ट्स तक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो सकता। इसका मतलब है 0 to 0.5 10 डिविजन्स है, तो डिवीजन 1 अगर मिलता है डिफ्लेक्शन यहाँ पर, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बस 0.5 डिवाइडेड बाय 10, हेंस 0.05 वोल्ट will be the potential difference। हाँ, अब आगे छोटी छोटी बातें रहती हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं इसे, बहुत सारे नंबर से यहाँ पर 1 नंबर से यहाँ तक 500 ओहम्स तक। These are 2 terminals for external connections। अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे मानो 3 कीज निकाले, अब मैं क्या करता हूँ कि ये सारे कीज डालता हूँ, खाली एक नहीं डालता। इफ 1 ओहम की इज विड्रॉन देन वी से 1 ओहम रेजिस्टेंस इन द पाथ। अगर मैं दूसरी एकाधिक की निकाल लेता, मानो 5 की निकाली, 5 नंबर जहाँ पर है वो की निकाली, ये सीरीज में है तो ये 1 ओहम और ये 5 ओहम 6 ओहम्स हो गए। ये पूरे सीरीज में हमने अगर यहाँ की निकाली तो ये है 200 ओहम्स वाली, 1 + 5 6 एंड 206, ऐसे 206 ओहम्स रेजिस्टेंस इस पाथ में है। मतलब हम लोग जान सकते ये कि कितना रेजिस्टेंस है, वी कैन मेजर द रेजिस्टेंस इन द पाथ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बॉक्स। ऐसे कुछ कंपनी के स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस भी रहते हैं। इस बॉक्स के अंदर 10 ओहम वाला रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर एक 10 लिखा है, 10। सो दिस बॉक्स हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम्स। अब ये कनेक्शंस लगते हैं, हमें कनेक्शन करने के लिए वायर्स की जरूरत होती है। So these wires we people use and that is why we call it as connection wires। ये कनेक्शन वायर को रेजिस्टेंस भले रहता है लेकिन निग्लिजिबल रहता। कॉपर वायर रहती है ना अंदर, तो कॉपर वायर इज ए निग्लिजिबल रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टेंस अपन उसका काउंट नहीं करते अपने सर्किट में, नहीं रहता ऐसा नहीं बोलना। There is a resistance in the wire but it is negligible, very small resistance। अब मेरे पास ये 2 सेल का ज्वाइनिंग है, 2 सेल्स हमने सीरीज में लगा दिए और फिर एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल ऐसा लगा दिया। देखो मेरे पास एक सेल थी, ये दिस इज अ सेल और बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट। अगर मेरे पास वोल्ट मीटर है, ये देखो मेरे पास वोल्ट मीटर है, सो वोल्ट मीटर में अगर हम लोग कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसका मेजर करने के सोचे तो देखेंगे। वी विल मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल, इट मीन्स EMF ऑफ दिस सेल by using this voltmeter। See, I have connected a red wire to this red। Now see, अब देखिए डिफ्लेक्शन कितना है,
deflection in the voltmeter will be, see, there is a deflection up to 1.5 वोल्ट, थोड़ा सा कम है क्योंकि ये डिस्चार्ज हो गए इसे। अब देखो हम लोग 2 सेल्स वाले कनेक्शन करेंगे, ये सीरीज में है, 1.5 कितने हो जाएंगे सीरीज में? हाँ, इट विल बी 2 सेल्स ग्रुप एंड देयरफॉर इट विल बी 3 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग फिर से कनेक्शन करेंगे इनका। देखिए ये मैं एक वायर कनेक्ट कर दिया और एक बस ऐसा रखता हूं तो देखिए, देखो 3 से थोड़ा सा कम है, मतलब ये भी तो थोड़ी सी डिस्चार्ज हुई होगी, इसलिए 3 से थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस कम आता, 3 वोल्ट्स से कम। एंड दिस इज लास्ट डिवाइस दैट वी will use in our circuits. This is called as a rheostat. In fact, it is a resistance. A very long and thin wire is wound on this plaster of Paris rod. It is having resistance of 500 ohms. Look at this. This is 500 ohms. Now, this wire wound on this plaster of Paris, and 2 ends of that wire are fixed at these 2 ends. These 2 ends are called as base terminals, and this block moves on this particular wire, on this wire or on this rod. There is a copper strip which connects this wire, and therefore the provision for connection to this copper strip through this rod is here. So this point of connection called as a variable terminal and base connections, base points. So this is called as a rheostat. Rheostat consists of 3 terminals, base and variable. If current entered at this terminal, then it travels up to the copper strip, and then through this wire it is connected either to this terminal or to this terminal. In the electric circuit, most of the times one of these 2 base terminals are connected, one remains free. मान लो कि ये फ्री है, ये कनेक्टेड है, तो ये करंट ऐसा इधर से आएगा, इधर इतने टर्न्स में से इधर आएगा, इधर चले जाएगा सर्किट में। अगर मैं ये ब्लॉक इधर घुमाता तो इतने ज़्यादा वायर में, मतलब इतने ज़्यादा टर्न्स में से, इतने ज़्यादा लंबी लेंथ में से करंट को जाना पड़ेगा। अगर ये मैं ब्लॉक इधर घुमाता तो करंट डायरेक्ट इधर आएगा और इस कॉपर स्ट्रिप में से इस टर्मिनल पर चला जाएगा, मतलब लेंथ कम हो जाएंगी, मतलब टर्न्स कम होते तो लेंथ तो कम होनी है ना। एंड दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल रजिस्टर। हाँ, इसमें नंबर पता नहीं होता कितना रेजिस्टेंस है, पर इसे कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर। और ये भी था वेरिएबल रजिस्टर, पर इसमें करंट रेजिस्टेंस कितना है ये हम लोग मेजर कर सकते, देख सकते, इसमें कितना रेजिस्टेंस है ये नहीं देख सकते। सो दिस इज कॉल्ड नोन वेरिएबल रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड अननोन वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड रियोस्टैट, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, नाउ दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स। उसमें रेजिस्टेंस बहुत बड़े बड़े दिख रहे थे, असल में वो उतना बड़ा रेजिस्टेंस होता नहीं। रेजिस्टेंस तो बहुत जो सर्किट में लगाते ना वो बहुत ही छोटे छोटे होते। देखो ये ऐसा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में ऐसे बहुत कलर बैंड्स होते जो हम लोग 11वीं में पढ़ने वाले, जो हमने जो डिवाइसेस देखे वो सारे हाई स्कूल लेवल तक ठीक थे, पर अब 11th एंड 12th सिलेबस में हम लोग जो बात करेंगे वो ये रेजिस्टेंसेस की, मतलब हाई वैल्यू रेजिस्टेंसेस की। इनको मेजर कैसा करना, उनके कलर बैंड्स कैसे काम में आते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, ये कलर अलग अलग कलर्स के होते हैं तो उनको कैसा मेजर करना। सो हम लोग ये सारी बातें देखेंगे, सीखेंगे। सो दिस इज हाउ कलर बैंड रेजिस्टेंस आर देयर, and on the basis of color bands we find its value, means it's a resistance. So this is what a very small resistance called as a carbon resistance. Thank you.